दो स्टॉक्स जो काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं निफ्टी को ऊपर लेने में, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है और एचडीएफसी बैंक शामिल है। दोनों ही स्टॉक्स जो है काफ़ी मोमेंटम में भी है। समीर सर, अगर हम रिलायंस ग्रुप की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं 1518 के आसपास, 1500 का लेवल अच्छे से क्रॉस कर दिया है। और जियो फाइनेंशियल इसी ग्रुप से जुड़ी कंपनी, जहाँ पे आज 4.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है, 326 के आसपास के लेवल्स है और सेबी से मंजूरी मिल गई है ब्रोकिंग कामकाज शुरू करने के लिए। तो दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हम अभी भी पॉजिटिव है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। स्टॉक में अभी रिसेंटली काफी अच्छी रैली आई है। आई थिंक इट मेड अ लो ऑफ ऑलमोस्ट 1100 जब ये मार्केट में करेक्शन आया था, और वहां से इट्स मूव्ड अप टू 1500। सो वैल्यूएशंस आर नाउ अगेन ट्रेडिंग एट फेयर वैल्यू। आई एम नॉट सेइंग इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट फेयर वैल्यू पे है। अभी रिलायंस में दो बड़े ट्रिगर्स आ सकते हैं। The first is the actual announcements on what their plans for expansion in the green energy spaces. They've करेक्ट। obviously thrown out larger numbers कि हम these many gigawatts करेंगे of solar power, this much of hydrogen, but actual ground पे no orders have been placed. They're still going through a trial phase. Once that starts happening and they start giving out orders, and then Reliance का क्या beauty है कि they scale up and they do their operations very quickly when they actually get their act together. So we think that once it starts happening and people can start projecting कि वहां पे कैसा इन्वेस्टमेंट होगा और उसके क्या रिटर्न्स आएंगे, that will be one trigger. Second, काफी टाइम से उन्होंने कैरेट डैंगल किया है अपने सामने कि टेलीकॉम बिजनेस हम लिस्ट करेंगे। जी। It's been, I think, almost a year and a half since that carrot has been dangling. But every day that passes, we believe that we are now closer to that carrot actually materializing. So करेक्ट। hopefully in the next, अभी market buoyant है, issues are selling very aggressively. यस, नो प्राइवेट डाउट। इक्विटी के शेयर्स बिक रहे हैं, प्रमोटर्स के शेयर्स बिक रहे हैं, एंड दे गेटिंग लैप्ड अप इन मैटर ऑफ moments. So this is a great opportunity for them to probably come with their IPO and say, okay, we want to list. और telecom में because of Vodafone limping and the survival of Vodafone being questioned, the telecom में उनको valuation भी अच्छी मिलेगी because kind of becomes a duopoly. Of course, BSNL, MTNL together भी है, but they have very small market share compared to what Jio and Bharti have. And अगर Vodafone falls by the wayside, or it just limps along जैसे अभी कर रहा है for the next 10 years, I think the opportunity to make money for Jio Telecom and for Bharti is going to be great. तो वो अगर listing आती है तो एक value unlocking हो सकती है, which can drive up the price further. Of करेक्ट। course, the retail business maybe we've been saying for some time कि अभी turnaround आना चाहिए because consumption will pick up. But that, I think, listing उसका काफी time away है. So maybe in the numbers you will see positivity which could drive, but don't expect anything there. Net we feel के over the next 3 years अगर आप invest करना चाहते हो तो you can comfort from even these 1500 levels. I feel 15 to 20% CAGR return आपको Reliance में अभी भी मिल सकता है. Ideally, I would love to say buy at around 1300, 1350, where there is more upside. But given जो market में liquidity और पैसा आ रहा है, the जी। probability of that price coming becomes less unless something changes drastically. 10% fall in Reliance seems a little difficult, but any corrections closer to even 14, 20, 30 आपको लेना चाहिए। एंड रिलायंस जियो, फॉर जियो हम जियो इतना पॉजिटिव नहीं है, जियो जियो में तो फाइनेंशियल। फिलहाल तो खाली डब्बा है। Of course, they're getting their approvals for their launching the mutual fund business. They're getting their approval for launching the stock broking business. But the space is already very competitive. Abhi, what is going to make someone who's trading at a Grow or a Zerodha or a Angel shift to Reliance? He has to do something totally different to bring a customer in. क्योंकि 20 रुपए ब्रोकरेज FNO के कॉन्ट्रैक्ट पे, zero brokerage on intraday and delivery and all of these things that all of these broking firms are giving. वहां से to get that business into you is not going to be the easiest thing. So I want to see what they do differently before I say कि नहीं Reliance है तो कर देगा. Second, I also believe mutual fund industry is very competitive space. Margins are small. Larger players are actually gaining more market right now. अगर आप देखें तो HDFC, SBI के AUMs are growing at a far faster pace than some of the smaller AUMs are growing. Smaller mutual funds are growing, right? So how Jio is going to make a splash? कौन fund manager रखेंगे?
What kind of business will that fund manager be able to garner? There's no track record. Just Jio के I mean Reliance के नाम पे can investments come? 100% आएंगे. But is it going to mean the profitability is going to come from day one? I don't think so. I think unko, there will be a period where they will have to scale up, prove themselves, get to profitability, and then let the operating leverage play out. So not as convinced on Jio financial. I'm surprised कि वो index stock है without any business, but the fact is it's Reliance, so they can manage to pull that off. जी लक्ष्मीकांत जी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी के स्टॉक को देखिएगा। एचपीसीएल अभी 4% ऊपर कामकाज कर रहा है। तीनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, एचपीसीएल तो अपने ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी ऊपर काम कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बाइंग रिकमेंडेशन अभी करंट लेवल पे दिया जा सकता है। बट ओके। मुझे जो बेहतर स्टॉक्स लग रहे हैं वो लग रहे हैं बीपीसीएल और आईओसी। सो बीपीसीएल अभी रिसेंट स्विंग हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है 334 के आसपास। मुझे लगता है कि 335 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो हम जो इसका रिसेंट स्विंग लो है 325 का, उसका स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर हम एक ट्रेड सजेस्ट कर सकते हैं। 335 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है देन हमें 355 360 के लेवल्स पीपीसीएल आने वाले समय में दिखा सकता है। वहीं पर आईओसी आज हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन में भी स्टॉक था, तो अभी थोड़ा ऊपर आ गया है। लेकिन अगर ये फिर से 146 145 के जोन पर आता है तो वहां पर एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। उस दौरान जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 141 का रहेगा, और जो अपसाइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो 160 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आईओसी और बीपीसीएल दोनों स्टॉक अच्छे हैं। बाय ऑन डिप्स की बीपीसीएल 335 के ऊपर और आईओसी बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ अराउंड द लेवल्स ऑफ 145 146 के आसपास हम बाइंग का सजेशन दे सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके रडार पे कौन से शेयर है? जी, सबसे पहले तो आईओसी है जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। तो मुझे जी। लगता है कि अगर ये 145 146 के आसपास आता है तो यहाँ पर हम बाइंग करके चलना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 141 का। जो अपसाइड के जो टारगेट आ रहे हैं वो 160 तक के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो हम एफएमसीजी स्पेस से रिकमेंड करना चाहेंगे, जो कि है नेस्ले इंडिया। ओके। यहाँ पर हमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर अगर हम आरएसआई और मैकडी एमएसीडी के लेवल्स देख रहे हैं तो वहां पर भी बुलिश क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक से। और कब पिछले 3 से 4 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। और अभी रिसेंटली इसने जो ब्रेकआउट लेवल था 2450 उसके ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। तो मुझे लगता है कि 2400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। जो एक्सपेक्टेड टारगेट हमारे निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 2520 के, सॉरी 2570 तक के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो 2450 460 के आसपास इसको बाय करके चलें, 2400 का स्टॉप लॉस लगाएं और 2560 से लेकर 2580 के टारगेट का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं नेस्ले इंडिया में। यानी कि दो स्टॉक्स जो है लक्ष्मीकांत जी ने जो सुझाए हैं वो है नेस्ले इंडिया और आईओसी। इन दोनों स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं समीर सर से पूछना चाहूंगी। समीर सर, आपने लास्ट अपने आंसर में पॉइंट आउट किया दैट प्रमोटर्स हैव बीन सेलिंग, वीसीज, पीईज आर आल्सो सेलिंग। अभी मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रही थी मॉर्निंग में ही, 1 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यू की बिकवाली जो है हम इन सब प्रमोटर्स, पीईज लास्ट 2 मंथ्स में देख चुके हैं। सो हाउ कंसर्निंग कैन इट बी ऑन द सप्लाई साइड इश्यूज? तो है ही क्योंकि सी जो पैसा ये सब स्टॉक्स ले रहे हैं इज मनी दैट इज नाउ नॉट अवेलेबल। पहले क्या था कि देयर वाज अ बिग वॉल ऑफ लिक्विडिटी सिटिंग विद म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स आर कलेक्टिंग 25-30,000 crores इन एसआईपी मनी एवरी मंथ, पर what you got to realize is कि when you have so much selling by uh, promoters, obviously they also feel कि उनके शेयर के वैल्यू आर फेयर या ओवरप्राइस्ड, सो इट करेक्ट। पॉइंट्स आउट अ बिग रिस्क टू मी। सेकंड, आईपीओस जो कंटिन्यूसली आ रहे हैं,
today the last day है HDB Financial 12,500 crore IPO. So that is again 12,500 crore sucked out. They are talking of almost SEBI has given almost 74 to 75 approvals for IPOs to come over the next 6 months. This is going to be a huge amount of money that is going to again flow out of the secondary market. Now what this money goes, तो हम आप म्यूचुअल फंड के मैनेजर से बात करते हैं तो बोलते हैं कि प्रमोटर जब बेचता है तो वो कहाँ डालता है पैसा, पैसा तो हमारे म्यूचुअल फंड में ही आता है, तो वो वापस इन्वेस्ट ही हो जाता है मार्केट में. So the thought is कि that money eventually comes back to comes back to the market, so the market is not going to go down. But I think there is always a risk associated with so much selling that comes about and liquidity getting sucked out. If globally something changes on the liquidity front, so it is seeming unlikely क्योंकि US president is fighting for a rate cut, तो obviously liquidity तो बढ़ेगा ही. it's going to throw more money, because if debt में भी return कम आ जाता है तो where are you going to get the return? Return is coming eventually from equity market. So that could push more money into the equity market, but a purely liquidity driven rally pulling valuation multiples up without actual consumption happening on the ground is a risky situation. And this selling of 1 lakh crore, and we expect maybe another 80,000 to 1 lakh crore over the next 6 months. Agar itna supply keeps coming, it is a risk to the market. It may not be a risk that we'll see a big fall, but upside might get capped. Or agar upside be cap hota hai, so my personal view is this year we should not see the Nifty about 26,000 at all. In fact, I would say fair level for the Nifty is closer to 23,000. Is it going to happen? Probably not. But that is where fundamentals put us at. It's purely liquidity driven, and we can't fight liquidity, so you have to enjoy the ride while it lasts. सबीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. इट्स ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू. लक्ष्मीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. यू गाइस हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड. थैंक यू गीतू जी. तो मार्केट्स देहाई के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं. निफ्टी इस समय 75 अंकों की मजबूती के साथ 25,625 का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी देहाई पे ऑल टाइम हाई पे भी आपकी स्क्रीन पे है. निफ्टी एट डे हाई एंड बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई 57,355 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है. तो प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं.